right? I'll give you one more problem about average velocity. Good evening, everyone. Good evening. So, uh, basic mathematics. Yes, sir. Okay. So, how many video lectures did you all complete in basic mathematics with a constant speed? With a constant speed, right, of 10 meters per second, and returns back to CTA and returns back to CTA with a constant speed of 20 meters per second. 20 meters per second. Find the average speed during the entire journey. During the entire journey. Sir, 15 per second. चलो बच्चों बताओ. Sir, 15 meter per second. Yes. 15 meter per second. Yes, 50 meter per 15 second. meters per second. Yes, sir. Okay. Okay. So particle is traveling from A to B. अच्छा, A to B का मान लो मुझे डिस्टेंस पता नहीं है. Let's say it is D. Let's say it is D. तो हमारा जो पार्टिकल है, तो पहले तो वो A to B जा रहा है. जाने का स्पीड कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो वापस लौटने का स्पीड कितना है? वापस लौटने का स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. वापस लौटने का स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना. ए टू बी जाने का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. वापस लौटने का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. So I can say that time taken. Okay. And now average speed is equal to total distance by total time taken, है ना. So basically हमारा जो average speed है, average speed equal to total distance by total time taken, है ना. ठीक है. तो बेसिकली so let
time taken to travel from A to B. Let time taken to travel from A to B is T1. तो मान लो time taken to travel from A to B is T1. So basically what is T1? T1 equal to D by 10, है ना? And time taken to travel, time taken to travel from, कहीं भी अगर डाउट हो ना बच्चों तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? You ask, I'll tell you. Time taken to travel from B to A is होगा T2. So basically what will be the value of T2? T2 will be equal to distance again by speed, 20 meter per second. So average speed basically total distance by total time taken क्या होना चाहिए? 2D by total time, T1 plus T2 implies, है ना, implies ये जो average speed है, in this case average speed will be equal to total distance traveled is 2D divided by total time taken. एक टाइम टेकन है D by 10, दूसरा है D by 20, है ना? So that is equal to 2D divided by 2D plus D by 20. That is equal to 2D into 20 by 3D. कितना आ रहा है? 40 by 3 मीटर पर सेकेंड, है ना? So time taken average speed is equal to 40 by 3 meter per second. So average speed phi average equal to 40 by 3 meters per second. ठीक है ना बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 15 नहीं है. अगर टाइम टेकन सेम होता ना तब 15 आता है आंसर. टाइम टेकन तो अलग अलग है ना, ठीक है ना? प्रजक्ता, पल्लवी, Yes, ईशा, sir. Yes, खुशी, sir. ठीक है ना बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेट Yes, मी sir. सी द चैट बॉक्स. वेरी गुड. सपना ने एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया था. सपना ने भेजा था करेक्ट आंसर, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, ओके. ओके तो I'll go to the next problem now. Okay, so students, next problem is, है ना, particle covers half of its journey
half of its journey. तो जो पार्टिकल है, it will cover half of its journey with a constant speed v. Half the remaining part of the journey half of the remaining part of the journey with a constant speed 2v, and the rest of the journey with a constant speed 4v. Find its average speed during the entire journey. Find its average speed during the entire journey. देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस d ले सकते हैं ना हम लोग, हाफ ऑफ द जर्नी है ना, मतलब जो d/2 है विथ स्पीड v, रिमेनिंग पार्ट का जो आधा है, मान लो रिमेनिंग पार्ट इज d/2, उसका आधा क्या, d/4 विथ स्पीड 2v, और फाइनल जो बच गया, फाइनल जो बच गया रेस्ट, again d/4 is the remaining, final remaining one, has traversed with the speed 4v. Has traversed with the speed 4v, ठीक है ना? चलो। हाँ, आप नाउ फाइंड आउट कि क्या होना चाहिए। अरे वाह, अमीशा, खुशी, यू आर वेरी फास्ट। और किसने आंसर दिया है अभी तक? सिर्फ खुशी और अमीशा ने आंसर दे दिया। और कोई बताएगा आंसर? सेम फॉर्मूला यूज होगा, है ना? मैं बता दूं, बस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना? You have to go by this formula, है ना? Average speed equal to total distance covered by total time taken.
Okay, Sapna now gave the answer. Amisha, Khushi, Sapna, everyone has answered me. Everyone has a different answer. Rajeshri answered. अच्छा, तो किसका आंसर? अमीशा को अपना आंसर चेक करना पड़ेगा. सदाब आंसर्ड, वेरी गुड बेटा. देखो टाइम टेकन, वेरी गुड श्रुति बेटा, वेरी गुड. फर्स्ट तो I'll take time taken to travel. Very good, Sakshi. First half. Time taken to travel, first half. Very good, Ishika beta. Sakshi, very good. Time taken to travel, first half. कितना होगा? T1 is equal to distance covered D by 2 by V. So that is equal to D by 2V. है ना? Next is time taken. Very good, Nikita beta. Travel. वेरी गुड सत्य प्रकाश. अब तो मुझे आंसर बताने का जरूरत नहीं है, तो सब लोग तो एक के बाद एक आंसर कर रहे हैं. निशा बेटा तुमने आंसर नहीं दिया. सेकेंड हाफ. सातक्षी वेरी गुड, है ना? अच्छा, टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट्स नॉट द सेकेंड हाफ. ट्रैवल हाफ ऑफ द रिमेनिंग. टाइम टेकन टू ट्रैवल हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, है ना? टाइम टेकन टू ट्रैवल half of remaining distance. Half of remaining distance. वो कितना होगा? T2. वेरी गुड निशा बेटा. That is equal to D by 4 divided by distance covered by speed. So that is equal to D by 8V. है ना? T2. Next is time taken to travel the rest part of the journey. Very good ikra beta, है ना? Rest part of the journey. Rest part of the journey का time taken क्या होना चाहिए? अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर नहीं दिए. जो भी आंसर आ रहा है बताओ ना बच्चों. कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो तुम्हारे सामने तो मैं आंसर बना ही रहा हूँ ना, तो करेक्शन तो कर लोगे तुम लोग, है ना? प्रजक्ता, दीपिका, पल्लवी, प्रीति, संभावी बेटा, नंदनी, है ना? आयुष, है कि नहीं बेटा? और कौन कौन है मीटिंग में हमारे आज? वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका बेटा. शेखर, स्नेहा, सौरभ, कोशिश करो. स्वयं शुभम बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना? स्वयं शुभम, वेरी गुड. ऑलमोस्ट सब ने आंसर करेक्ट दे दिया है. ठीक है ना? टाइम टेकन टू ट्रैवल द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है ना? दैट इज इक्वल टू अगेन रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. बचा कितना? D by 4. सो व्हाट इज T3? है ना? T3 इक्वल टू D by 4 divided by 4V. implies T3 is equal to D by 16V. है ना? सो टोटल टाइम टेकन क्या है? सो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, है ना? सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? इज इक्वल टू T1 plus T2 plus T3. ठीक है ना?
So total time taken is equal to t1 plus t2 plus t3. ठीक है ना? So that is equal to d by 2v plus d by 8v plus d by, है ना, 16v. ठीक है ना? अच्छा, तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पॉइंट इज दैट, है ना, एवरेज स्पीड जो है, सॉरी, the point is that what is the total time taken? Total time taken, total time taken is equal to d by 2v plus d by 8v plus d by 16v, है ना? So that is equal to, ये आ जाएगा 16v, ये आ जाएगा 8d plus 2d plus d, implies total time taken, total time taken कितना आया? That is equal to 11d by 16v. एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए? एवरेज स्पीड होना चाहिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है ना? सो दैट इज इक्वल डी इंटू 16v बाय 11d. ठीक है ना? implies total time taken equal to, है ना, इक्वल टू d upon, sorry, implies average speed equal to, implies average speed equal to, है ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू बेसिकली d डिवाइडेड बाय है ना, सॉरी, दैट इज इक्वल टू, ये तो कैलकुलेशन तो हो गया था, है ना? तो दैट इज इक्वल टू 16v बाय 11, है ना? सो दैट इज इक्वल टू 16v बाय 11. ठीक है ना? सो दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी. इज दैट क्लियर Yes, डियर sir. स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये क्लियर है ना? ओके. Sir, meter तो per बच्चों second. हम क्या करेंगे बच्चों? क्या बोले बेटा? Sir, meter per second. अरे वो तो v दिया था ना, मीटर पर सेकंड थोड़ी ना दिया था, मतलब वो मेंशन नहीं किया ना किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, वो बस v दिया है, तो इसलिए मैंने बस v के टर्म्स में ही उसका आंसर दे दिया. ठीक है ना बेटा? क्लियर है ना? ओके. Okay, sir. ओके, तो मैंने तुमको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताया था, है ना? आई हैड डिस्कस्ड अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन. Yes. ठीक है ना? हाँ बोलो, बोलो बच्चों, Nothing, sir. है ना? we discussed about equations of motion yesterday. ठीक है ना? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम जो कल डिस्कस किए थे, मैं उसके ऊपर, है ना, आई वांट टू लेट्स से डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है ना? अच्छा,
है ना, ये कल वाला स्लाइड है जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कल डिस्कस किया था। तो मैं बेसिकली इसके ऊपर ना कुछ प्रॉब्लम्स, आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, बच्चों, है ना, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल पार्टिकल starts from rest in a straight line पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, with constant acceleration a, with constant acceleration a and initial velocity u, and initial velocity u. Find the average velocity of the particle moving in the first t seconds. Find the average velocity of the particle in first t seconds. Average velocity of the particle in the first t seconds. Constant acceleration है ना, and constant velocity u. अच्छा, देखो ना,
एक्चुअली s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट t seconds. So this is the distance traveled in t seconds. So basically this is distance traveled, है ना, in t seconds. So this is basically distance traveled in t seconds. तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t seconds, है ना? नाउ यस, वेरी गुड, वेरी गुड शदाब। स्वयं शुभम, थोड़ा करेक्शन है बेटा, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी है ना बेटा, u है इनिशियल यस सर, वेलोसिटी। हाफ आएगा सर, गलती से लिख दिया। टाइम टेकन इज t, टाइम टेकन इक्वल टू t, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना, बाय टाइम टेकन। सो दैट इज इक्वल टू, वेरी गुड श्वेता बेटा, अभी तक सिर्फ सदाब और श्वेता ने ही सही आंसर दिया है, ठीक है ना? implies what is average speed? So average speed equal to u plus half at, ठीक है ना बच्चों? दिस इज द एवरेज स्पीड। So what is average speed? That is equal to u plus half at. Is that clear? है ना? Okay. I'll move to next question now. सर बट इट इज इनिशियली एट ये क्लियर है 0। बच्चों? No, नहीं क्लियर है? no, sir. अरे डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकंड्स कितना होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा ना? इनिशियल वेलोसिटी तो u है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज s व्हिच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन इज t, मुझे t सेकंड्स में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। Yes, t sir. सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना? टाइम टेकन t सेकंड्स है, Yes, एवरेज स्पीड क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाय t, सो u प्लस हाफ at। इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? yes, sir. Yes, ओके, तो बच्चों आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। sir. Sir, sir. हाँ बोलो बेटा। So मेरा तो हाँ आंसर था u plus 80/2. तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन का क्या है आंसर? तो u plus 80/2 और उसको फिर डिवाइड करेंगे तो u plus हाफ 80 होगा। हाँ, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से t डिवाइड कर लिया तो u प्लस हाफ एटी होगा ना? तो वही तो मेरा आंसर है, वो हम फ्रैक्शन में ही लिख दिए हैं, अलग डिवाइड ये नहीं, सेपरेट नहीं किए हैं। तुम्हारा वही आंसर आया था? सर वही लिखा हुआ तो है मेरा। हाँ मतलब तुमने वही आंसर निकाला था ना बेटा? तो मेरा यही आंसर है 2u plus 80/2। एक बार चेक कीजिए मेरा आंसर। हाँ हाँ सही है, लेकिन तुमने तो यहाँ पे आंसर मुझे भेजा नहीं है चैट बॉक्स में। भेजे हैं सर। आया नहीं है, मुझे मुझे मिला नहीं है अभी तक, तो स्टार सबसे शायद फर्स्ट ना पहुंचा नहीं होगा। सर हम भी भेजे हैं सर। कौन? प्रीति? यस सर। हाँ, तुम्हारा आंसर जो है ना वो v बाय 280 है, एक्चुअली वो v प्लस यस सर, रॉन्ग है। 1/280 होगा। हाँ
है ना। मुझे आंसर पहुंचा है किस किस का, मैं बोलता हूँ। स्वयं, शुभम। सर मेरा आंसर खुशी के ऊपर है। हाँ, अमीषा, अमीषा तुम्हारा आंसर में तुमने लिखा है 2। अच्छा 2u, अच्छा तुमने एलसीएम ले लिया है, 2u प्लस 80 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ब्रैकेट देना चाहिए ना बेटा। मुझे तो दिख रहा है कि ऐसा 2u+80/2, मतलब 2u+80 ब्रैकेट दे देना है होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। ओके, हमेशा सही है ना, लेकिन तुमने जैसे लिखा था ना, सर मतलब वो वो होल थोड़ा का मैं समझ नहीं पाया डिवाइड बेटा। ठीक है ना बेटा। जैसे। ओके, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car is moving towards check post. A car is moving towards check post. A car is moving towards check post, है ना। With velocity 54 kilometers per hour. With velocity 54 kilometers per hour. ठीक है ना। When car is at 400 meters. When the car is at 400 meters, है ना। The car is at 400 meters uh, from check post. From check post, है ना। Driver applied brake. Driver applied brake, है ना। Driver applied brake, which is which caused acceleration, deceleration of, retardation of, which caused deceleration of, which caused deceleration of 0.3 meter per second square, है ना। Find the distance of car from the check post two minutes after applying the brake. Two minutes after applying the brake. ब्रेक अप्लाई करने के 2 मिनट बाद चेक पोस्ट से कार का डिस्टेंस कितना होगा।
है ना, यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट है, नाइस कार। ठीक है, थैंक यू, पुराना डिजाइन है, कल का सर। ओके। चलो ड्राइवर भी बना लेते हैं। सर बिना ठीक है विंडो ना, और डोर के कौन सी कार होती है? तो वो मैंने डोर वोर नहीं बनाया, मतलब वो मान लो पूरा ग्लास डोर है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर है, ठीक है। 375 मीटर। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना होगा, 5 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, आंसर किसने दे दिया? हाँ सर 375 मीटर। अच्छा 375 मीटर। अच्छा, सपना और राजेश्वरी ने आंसर दे दिया, आई थिंक यू आर करेक्ट, देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये है, हमें चाहिए 2 मिनट, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर, इशिका वेरी गुड, श्वेता वेरी गुड, इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, है ना। तो कितना होगा बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए 2 मिनट बाद, एस वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा इन 2 मिनट्स, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 15 इंटू टाइम टेकन, है ना, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो इंटू 60 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन माइनस 0.3 into square of time, 60 square, so implies s equal to 900 minus 3/20 into 60 into 60, 9 into 60, 60 into 3, अच्छा s कितना हुआ, 900 माइनस 9 into 60, अरे मेरा तो अलग आ रहा है, implies distance covered equal to, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट में, 900 माइनस 540, So 450. 540 है ना, 69 into 60, है ना, 0.3/2, वो 3/20 होगा बेटा, 360 मीटर्स। हड़बड़ी में तुम लोगों ने गलत कर दिया बच्चों, अच्छा यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था, या फिर क्या हो गया, मतलब गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, गाड़ी कवर करेगा डिस्टेंस 360 मीटर्स, लेकिन चेक पोस्ट से डिस्टेंस कितना होगा उसका, चेक पोस्ट है ना, कितना डिस्टेंस होगा 2 मिनट के बाद, कितनी दूरी पर होगा, 40 मीटर की दूरी पे होगा ना, डिस्टेंस ऑफ कार from check post two minutes after applying the brake, after applying the brake is 40 meters, right? सर हाँ, सर वो 2 minutes 120 seconds होगा ना टाइम? वो क्या हुआ बेटा, सर 2 minutes 120 seconds होगा।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 मिनट्स इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अच्छा तो यहाँ पे 120 इंटू 120 लेना पड़ेगा। थैंक यू स्वयं शुभम बेटा, वेरी गुड। इंटू 120 इंटू 120। अच्छा पूरा यहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा। 3/20, अरे वो तो फिर चेक पोस्ट के आगे चला जाएगा क्या? 120 इंटू 120 ना, 20 और ये काट दो तो 6। 120 इंटू 6। अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब सर वो, हाँ सर 15 इंटू 120 होगा ना? अच्छा 50 इंटू 120 भी होगा ना, यस। तो ये हो जाएगा 1800। एटीन हंड्रेड है ना, माइनस 360 इंटू 6, तब भी तो ज्यादा आ रहा है। सर 180 नहीं 1800। 1800 है ना, हाँ 1800 है ना, और ये हाफ इंटू 0.3 है। 0.3 है, हाँ यहाँ पे तो 0.3 दिया है। देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक आई थिंक इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो नहीं हो रहा है, माइनस में आ जा रहा है। माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, माइनस में आ रहा है मतलब क्या है कि वो है ना, इस पोजीशन से फिर माइनस आ रहा है, मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, मतलब वो आगे जाके फिर पीछे आ गया, तब तो 400 मीटर के साथ और तुमको ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस। 0.3 ठीक है बाई ना, 2 ना 0.3, बाई 2। हाँ 0.3/2 क्या होगा, 3/20 होगा, यस सर। इंटू 120 इंटू 120, तो इसको काट दो तो ये 6 है ना। सो मान लो ये 3, आंसर क्या है 1800 माइनस 2160। यस सर। तो सर minus 360। हाँ सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर 50 सेकंड में तो कार पूरी तरह रुक जाएगी, तो 2 मिनट का तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। हाँ वही ना, आ यही है। तो फिर अगर रुक गई तो जहां पे रुकी वहीं से आंसर निकालना है, ठीक है ना। ये हमने चेक नहीं किया ना कि ये जो एक्सीलरेशन है ना, ये गाड़ी को रोक रहा है या नहीं रोक रहा है। ठीक है, तब तो सही है ना। मैं थोड़ा सिंपल सोच रहा था, ठीक है ना, लेकिन हमको पहले तो ये चेक करना चाहिए कि है ना, ये जो ब्रेक अप्लाई किया इसने, है ना, इसमें से गाड़ी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। ठीक है ना, ये 15 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले तो टाइम टेकन निकाल लो उसका। वेलोसिटी अगर जीरो है, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, मतलब अगर 0.3 सेकेंड एक्सीलरेशन से ना, वो फाइनल वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड रिटार्डेशन से। इफ आई अप्लाई v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी में यू कैन सी योर फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.3, सॉरी माइनस 0.3 इंटू टाइम टेकन,
implies time taken कितना हुआ 15 by 0.3, so 150 by 3, 50 सेकेंड्स आ रहा है। मतलब गाड़ी तो 2 मिनट के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो बेसिकली वो 2 मिनट का पूछ रहा है 2 मिनट बाद क्या होगा। अब जब 50 सेकंड के बाद रुक गया, तो 50 सेकंड के बाद जहां पे रुका 2 मिनट बाद भी तो वहीं पे होगा ना, ठीक है ना। मतलब वो तो 50 सेकंड में ही रुक गया, तो जहां पे रुक गया हो ना, तो फाइनली वहीं पे होगा। सो यू कैन टेक फाइनल वेलोसिटी एज 0, either you can use s equal to ut plus half it square, or you can use v square equal to u square plus 2s, है ना। so now either use s equal to ut plus half it square और v square equal to u square plus 2as, है ना, to calculate distance covered by car till it comes to rest। सर 375 ही आएगा। हाँ 375 ही आएगा। अच्छा, मतलब 50 सेकंड में सिर्फ 25 मीटर चला है क्या? 25 मीटर चल के रुक जाएगा till it comes to rest, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है। अच्छा मैं यूज करूंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि मुझे तो पता है कि ना फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो रहा है। 2 मिनट से पहले वो फाइनल वेलोसिटी ना वो फाइनली 0 में आ रहा है। तो 15 स्क्वायर हाँ? प्लस 2, हाँ सर वहां पे टाइम तो 120 चाहिए था ना सर। हाँ तो 120 सेकेंड्स है ना टाइम, ठीक है। तो क्या बात ये है ना कि 120 सेकेंड्स के लिए चल रहा है क्या। मान लो मैं बोलूंगा कि राजश्री जो है वो है ना स्कूटर चला रही है ना। अब बेटा तुम्हारे पास कौन सा स्कूटर है? बुलेट। कौन, हाँ कौन सा स्कूटर है? होंडा एक्टिवा। सर एक्टिवा। हाँ वो सबके पास होता है, ठीक है ना, मेरे पास भी वही है। तो मान लो मैं बोलूंगा कि राजश्री ना अभी है ना होंडा एक्टिवा चला रही है, ठीक है, और वो स्कूल जा रही है। तो स्कूल से है ना 100 मीटर पहले उसने ब्रेक लगा लिया, ठीक है। तो ब्रेक लगाने के 10 मिनट बाद वो कहाँ पे होगी, स्कूल से उसका डिस्टेंस कितना होगा। अरे जब ब्रेक लगा लिया तो मान लो ब्रेक लगाने के 30 सेकंड बाद राजश्री रेस्ट में आ गई, स्कूटर रेस्ट में आ गया। तो 30 सेकंड के बाद अगर स्कूटर रेस्ट में आ गया तो स्कूटर जो है 30 सेकंड के बाद जहां पे है 10 मिनट के बाद भी तो वहीं पे होगा ना, रेस्ट में तो आ गया ना। यस सर यस सर। तो हमने यहाँ पे गलती क्या किया, हमने चेक नहीं किया ना कि रिटार्डेशन तो हो रहा है क्या, लेकिन रिटार्डेशन होने के बाद क्या वो 2 मिनट तक ना मूव कर रहा है गाड़ी, क्या कार जो है वो मोशन में होगा 2 मिनट तक ब्रेक अप्लाई करने के बाद, नो ठीक है सर। ना। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, ठीक है, वो वहां पे हमने गलती किया। सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले ना क्वेश्चन है ना आंसर आंसर भूल जाओ बेटा, आंसर के पीछे नहीं भागो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमको कहाँ पे पकड़ा, हमने गलती कहाँ पे किया, है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा बेटा, है ना। तुम लोग ना अच्छा करना चाहते हो ना, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए ना एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना 9th-10th ना तक जो पढ़े थे क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, क्वेश्चन आ गया फिर आंसर निकालिए, क्वेश्चन आ गया आंसर निकालिए, ठीक है ना। अब तुम जब 11th-12th में पढ़ाई करोगे, साइंस पढ़ते हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बहुत एनालिसिस इन्वॉल्व रहता है उसमें, ठीक है। छोटा छोटा एनालिसिस इन्वॉल्व रहता है, बहुत मतलब काफी एनालिसिस होता है, लेकिन छोटा छोटा एनालिसिस, है ना, छोटा छोटा एनालिसिस बट नंबर ऑफ एनालिसिस इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, इन द होल कोर्स, ठीक है ना। तो ऐसा ना छोटे छोटे चीजों को एनालाइज करते रहना है। तो हमने यहाँ पे गलती कहाँ पे किया, हमने ये मान लिया कि 2 मिनट तक गाड़ी मूव कर रहा है, हमने ये चेक नहीं किया कि ना सही में गाड़ी क्या 2 मिनट तक मूव कर रहा है या फिर उससे पहले रेस्ट में आ रहा है। अगर उससे पहले रेस्ट में आ रहा है, मान लो गाड़ी अगर रेस्ट में आ गया 1 मिनट में, तो 1 मिनट बाद जहाँ पे है 2 मिनट बाद में तो वहीं पे होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट बाकी रेस्ट ऑफ द 1 मिनट इट इज नॉट मूविंग,
है ना. So the position, if the car comes to rest after 1 minute, the position of the car after 1 minute is equal to position of the car after 2 minutes, है ना, is equal to position of the car after 5 minutes, is equal to position of the car after 1 hour, until and unless the car starts again. ठीक है ना. Yes, sir. हाँ, यही तो है कॉन्सेप्ट, है ना, और यही है फिजिक्स. ओके, तो 15 स्क्वायर इक्वल टू 0.6s implies 15 into 15 is equal to 6/10 into s. अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये. तो ये 2 और ये काट दिया मैंने 3 से, ये हो गया 5. ठीक है ना. अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये 5 आ रहा है. 15 into 25. अच्छा, समझ गया मैं गलती कहाँ पे हुआ तुम लोगों का. अरे उसका डिस्टेंस ट्रेवल इंप्लाइज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 375 मीटर्स फॉर द कार. लेकिन वो रुका जाके कहाँ पे, 375 मीटर ना ट्रेवल करने के बाद रुकेगा. लेकिन चेक पोस्ट से डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर. तो द डिस्टेंस फ्रॉम द चेक पोस्ट इज 25 मीटर. समझ में आया ना. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया. अब तुम लोगों को मजा आया कि नहीं मुझे पता नहीं है, ये तो तुम ही लोग बोलोगे. ओके, इज दैट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स? Yes, समझ आ गया sir. ना. Yes, मुझे तो sir. बहुत मजा आया. Yes, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे टाइम हो गया क्या. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना. कार इज ट्रैवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर. A car is traveling at 108 kilometers per hour. Per hour, है ना. Has its speed, car traveling at 108 kilometers per hour, has its speed reduced to 36 kilometers per hour after traveling a distance of 200 meters. After traveling a distance of 200 meters. meters. Find the retardation and time taken for this process. Find the retardation and time taken for this process. Has its speed reduced to 36 km per hour after traveling a distance of 200 meters? Find the retardation and time taken for this process. कार चल रहा है ना 108 किलोमीटर पर आवर. स्पीड रिड्यूस होके हो गया 36 किलोमीटर पर आवर. ट्रैवल किया डिस्टेंस 200 मीटर. टाइम टेकन, रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस निकालो बच्चों.
Initial velocity 108 kilometer per hour. Very good, very good. Amisha, when you are saying retardation, so write it in plus. Acceleration will be minus. अब retardation लिख रहे हो तो वो plus होना चाहिए. Because retardation is negative acceleration. ठीक है बच्चों? थर्टी meters per second. फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ये 36 किलोमीटर पर आवर है. So implies v is equal to 36 into 5/18. सारे लोग रिटार्डेशन का आंसर मुझे नेगेटिव में दे रहे हो. That's a wrong way of representing. रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, है ना? रिटार्डेशन मतलब वो प्लस में लिखो यार. एक्सीलरेशन होता तो तुम उसको माइनस में लिखते. तुम लोग मेरा बात नहीं सुन रहे हो कोई. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -2 होना चाहिए. रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू प्लस. ये 10 मीटर पर सेकेंड है. ओके. Now v equal to 10 meter per second, u equal to 30 meter per second, v square equal to u square plus 2as. Final velocity at 10 square equal to initial velocity 30 square plus 2 into acceleration into distance covered, है ना? So distance covered कितना होगा? That is 200. 100 equal to 900 plus 400a implies -800 equal to 400a. देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकेंड पर. ये जो आया मेरा ये एक्सीलरेशन है. implies रिटार्डेशन है ना इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. टाइम टेकन. नाउ v equal to u plus at implies 10 equal to 30 plus a into time taken. टाइम टेकन क्या है? अच्छा, a is equal to अच्छा plus a is equal to -2 into t implies -20, है ना? is equal to -2t implies t equal to 10 seconds. So everyone is correct, है ना? सारे लोग सही हैं. ठीक है. Is that clear now? So today's class is over. For the time being, class for today is over बच्चों.